That is a chapter of principles of inheritance and variations. Okay, so this is a new chapter in your syllabus. That is for PT 2, that is half yearly exams. You will be having this chapter. This is principles of inheritance and variation. Principles of inheritance and variation. Before starting with this topic as a whole, first of all, we should know that what are the two terms that are included in this chapter's heading they mean. That is inheritance and variation. We already know the variations. Variations we have studied with respect to the reproduction also. That is the more common type of the variations are seen in the sexually reproducing organisms. So what is variation? When the origin of the two organisms involved in the act of fertilization, that will be different. ठीक है, अगर दो organisms parents की बात करते हैं and the two they have the different origins, that is उनके दोनों के parents अलग, इनके दोनों के parents अलग, and then coming the next generation. Under that circumstances, there is formation of the gametes from the two different origins and then mixing of those gametes. And when that mixing takes place, there are chances that the expression of either parent will be there or a new character will be introduced. Okay? And that introduction of a new character, that is known as a variation. Variations are more common in the sexually reproducing organisms. Coming to the concept of that, when I said कि दो रीजन्स मतलब डिफरेंट हैं, दोनों के पेरेंट्स अलग हैं, दो पेरेंट्स उनमें से एक ऑफस्प्रिंग बना, अब ये एक ऑफस्प्रिंग है, दो पेरेंट्स एक ऑफस्प्रिंग बना, दोनों ने मिलके थर्ड जनरेशन बनाया, है ना। अब यहाँ सारे पे हम एक बात कर रहे हैं, हम एक कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज वी आर आस्किंग, वी आर हियर शेयरिंग अबाउट द कंसेप्ट दैट इज the transmission of the characters from the parents to their offsprings. How are the characters being transmitted from the parents to the offsprings? That pattern, that thing, that you can say the process of inheriting the characters by the offsprings from their parents, that is called as inheritance. Okay, the characters that are inherited means they are taken by the offsprings from their parents. The parents, they are giving them in the form of the genes which are present over the chromosomes that are present within a cell, and the cell which has been formed from the already pre-existing cells of the पेरेंट्स। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया है, आपने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा, स्पर्मेटोगोनिया आफ्टर अंडरगोइंग वेरियस ऑफ द स्टेजेस, है ना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अब ये सारी स्टेजेस डिफरेंटली लेता है, फाइनली इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अ मेल गमीट, एंड दैट मेल गमीट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वेयर, दैट इज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, दैट इज द पेरेंट सेल, है ना। उस गमीट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन थी, तो वो पेरेंट सेल से जो गमीट में इंफॉर्मेशन आई, वो गमीट ने ही आगे ट्रांसफर कर दी इनटू द new fetus, that is into the new organism that will be given birth afterwards, and that is the characters will be taken by that offspring now from their parents. That pattern of the flow of the characters from one generation to the next, that is called as the inheritance, right? All this when we are concerned with the study of the genes, है ना, जब हम इनको सबको कोरिलेट करते हैं with the genes structure, or the you can say the transmission is with respect to the genes, that what genes have been carried out from one parent to the next offspring, ऐसे from one generation to the next, तो ये जब हम genes के concern में पढ़ते हैं, that marks the field of biology, and that field of biology is called as genetics. That field of biology that deals with the genes and their patterns of transmission, inheritance, या उनमें वेरिएशन आती है, तो हर चीज अगर हम उन जीन्स के साथ, क्योंकि करेक्टर हमारे कहाँ पे हैं, इन जीन्स के ऊपर, है ना, कोडेड करेक्टर्स कहाँ पे हैं, जीन्स के ऊपर। अब इनके बारे में जब जब हम स्टडी करेंगे, कैसे डीएनए बना, कैसे रेप्लिकेट हुआ, कैसे उसने प्रोटीन बनाया, प्रोटीन इज अ करेक्टर दैट विच वी आर गेटिंग, तो ये हर चीज जो आप पढ़ोगे वो हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स फील्ड से। सो ये यूनिट जो है आपका, दैट कैरीज टू ऑफ द चैप्टर्स, वन इज दिस प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, एंड द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, है ना। तो वो मॉलिक्यूलर बेसिस पे यानी डीएनए लेवल पे जाके बात करेगा, यहाँ पे हम ब्रॉडली स्पीक कर रहे हैं, ऊपर ऊपर से देख रहे हैं हाउ इट इज जनरेटिंग फ्रॉम one to the next generation. So we are actually dealing with the field of genetics, and the field of genetics that has remarkably be you can say that has been remarkably uh, supported by the work of G.J. Mendel, that is Gregor John Mendel, and he has been regarded in such concern
as the father of genetics. That is, he has been regarded as a pioneer or the founder of the field of genetics. ठीक है, अब जीजे मेंडल ने बहुत सारा वर्क हमें दिया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स दिए फॉर हिज सेइंग्स, दैट इज द इनहेरिटेंस takes place, the characters are transmitted from the parents to their offspring. And for that, he basically selected one plant, that is a pea plant. With those pea plant only, he performed the experiments for several years, nearly 7 साल के लिए, 7 years के लिए इन्होंने काम किया उस पी के प्लांट के ऊपर. एंड ही वर्कड आउट, गिविंग, लीडिंग टू और कंक्लूडिंग टू द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, फाइनल उनका जो कंक्लूजन्स बने थे उन एक्सपेरिमेंट्स के, तो वो सारे हमें इन द फॉर्म ऑफ लॉज ऑफ इनहेरिटेंस प्रोवाइड हुए. ठीक है, सो ग्रेगोर जॉन मेंडल का ये सारा डिस्क्रिप्शन है क्या? What is the description? What is this details about the Gregor John Mendel? So the details about the Gregor John Mendel. Firstly, it started with the selection of the plant for him, and that was a pea plant. He selected for his experiments the pea plant, and this pea plant, why he has selected out of so many species available, why only pea plant he has selected? Because there was number of the reasons for this, and the very first reason that this is having the short life cycle. सबसे पहला इसका रीजन यही था कि ये शॉर्ट लाइफ साइकिल वाला प्लांट है. हैविंग द शॉर्ट लाइफ साइकिल मींस ही हैज नॉट टू वेट लॉन्ग फॉर हिज रिजल्ट्स, है ना. ये उसको बेनिफिट था कि शॉर्ट लाइफ साइकिल है, कि पी प्लांट के साथ अगर मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ तो मेरे पास ज़्यादा समय के लिए मुझे वेट नहीं करना पड़ेगा, एंड आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स वेरी क्विकली, है ना, विद इन द वीक्स, नॉट विद इन द ईयर्स, विद इन द वीक्स, क्योंकि सालों में क्या हो जाए वो पता भी नहीं होता, है ना. कुछ चेंजेस आ गई या वेरिएशंस आ गई या समथिंग इज हैपनिंग, तो he has not to wait for long, right? Secondly, this species was self pollinating. Being self pollinating, this has helped the researcher, that is G.J. Mendel, कि इनको दूसरे किसी प्लांट की फ्लावरिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ा, है ना. जब पी प्लांट फ्लावर हुआ, इन्होंने साथ के साथ एक्सपेरिमेंट्स कर दिए अपने. विद इन दैट गैप ऑफ द ग्रोथ, दैट इज वेजिटेटिव या रिप्रोडक्टिव ग्रोथ का जो उनका लाइफ साइकिल है पी प्लांट का, उतने में ही उन्होंने फटाफट से अपने एक्सपेरिमेंट जो है वो कर दिए, बिकॉज ही इज ऑल्सो गेटिंग द रिजल्ट वेरी क्विकली. सो इसीलिए उनको किसी दूसरे प्लांट की फ्लावरिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ा, एंड दिस इज सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट, राइट. And the next character that is mostly, you can say, which is most likely to be the most important factor for Mendel to select this pea plant, that is because here there were number of characters showing the contrasting features. So contrasting characters जो थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे और बहुत सारे characters में थे. It was 7 of the characters which were contrasting. 7 करेक्टर्स कंट्रास्ट में इनके बन पा रहे थे पी प्लांट्स में. मतलब अगर उनका एक्सपेरिमेंट एक में अपना रिजल्ट दे रहा है तो दूसरे में भी वैसा ही देगा, तीसरे के साथ तीसरा करेक्टर लेगा तो उसके साथ भी वैसे ही देगा, हर करेक्टर के साथ वो वैसा ही रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा था. एंड ही कैन कंक्लूड एंड ही कैन कम अप टू अ प्रॉपर, यू कैन से, कंक्लूजन आफ्टर दैट. ठीक है, तो ये ऐसा नहीं है कि अगर फ्लावर कलर के साथ कुछ डिफरेंट करेक्टर के रिलेशन आ रहे हैं तो स्टेम हाइट के साथ कुछ और आ रहा है, ऐसा नहीं. So they are all providing the same resultants, and hence he can conclude to one conclusion, right? And finally, all the contrasting characters, they were not confusing. They were very clear. All the contrasting characters, the contrasting characters were very clear. Very clear means that is, he has not to differentiate between the flower color, let's say purple and blue. है ना, पर्पल और ब्लू के अंदर कितना बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा तो नहीं होता. इफ दे टू आर हैविंग द सेम जोन्स, अगर साथ के साथ पेंट कर दिए जाए तो आपको भी डिमार्केशन लगाने में टाइम लगेगा कि पर्पल कहाँ खत्म होता है और ब्लू कहाँ शुरू होता है ना. ब्लू के शेड्स में अगर हम बात करें तो नियरर शेड्स, ग्रीन के शेड्स, नियरर शेड्स, ऐसा कंट्रास्ट नहीं था. इट वॉज टोटली डिफरेंट. इफ वन फ्लावर इज पर्पल द अनदर करेक्टर इज वाइट, टोटली डिफरेंट. मतलब वाइट और पर्पल में तो डिफरेंशिएट बड़ा मजे से कर सकते हो. ऐसे ही अगर हाइट है, अगर शॉर्ट हाइट अगर कोई दिख रहा है तो शॉर्ट हाइट इतना है, टॉल हाइट इतना है, तो वो मजे से पता चल रहा है कि दिस इज टू डिफरेंट स्पीशीज, नॉट स्पीशीज, द टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना. तो ये अलग पता चल रहे थे. ऐसा नहीं है कि शॉर्ट और ड्वार्फ, जो ड्वार्फ और टॉल हैं उनमें आपको डिफरेंशिएट करने में दिक्कत आ रही है. ऐसा नहीं है कि टॉल यहाँ तक है और ड्वार्फ यहाँ तक है.
और अब उसको मैच कर रहे हो इंचेस में कि ये कितना बड़ा है ये कितना छोटा है. नो, दिस आर these all the contrasting characters were very very clear. There was no such confusion in any of these characteristics to be described. So because of these features of a pea plant, G.J. Mendel, Gregor John Mendel, he has selected this variety for his experiments proving the laws of inheritance. Right? These were some of the features that has supported his work. Right? Now, what was his experimental work? That is, what experimental procedure has he followed? So, the experimental procedure or the steps that which he has followed or the work that he has followed in a stepwise mechanism. So what was the experimental steps? सबसे पहले जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना था, he framed out some steps and then he worked on them. And what was the framing of these steps? The first thing is selection of pure breed. Selection of pure breed. Pure का मतलब क्या होता है? This is genetically pure. Okay, not pure from its outer character morphological, it is genetically pure. Genetics, क्योंकि हम genetics की बात कर रहे हैं ना, तो genetic level पे pure होना जरूरी था. For example, जैसे इन्होंने जो character लिया, he took the violet and the white color flowers first of all for performing his experiments. अब यहाँ पे अगर violet और white लिया है, तो violet का बाद में जो उन्होंने conclusions दिया था, उसमें ये पता चला कि जो violet color है वो सिर्फ एक ही genetic pair से नहीं बनता, वॉयलेट कलर दो अलग अलग जेनेटिक पेयर्स से बनता है. ये ठीक है, यानी एक पेयर पूरे डोमिनेटिंग का, एक पेयर डोमिनेटिंग और रिसेसिव दोनों तरह के जीन्स का जो एक्सप्रेशन देगा वो वॉयलेट कलर आएगा. पर क्या वो प्योर ब्रीड कहलाएगा? नो, प्योर ब्रीड सिर्फ वो है जिसमें जीन्स भी प्योर आए. ठीक है, जीन्स का पेयर भी प्योर होना चाहिए, उनमें कोई मिक्सिंग इंटरमिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, है ना. यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये इंटरमिक्सिंग है. इंटरमिक्सिंग मींस यहाँ पे एक डोमिनेटिंग जीन है तो दूसरा रिसेसिव जीन, स्मॉल बी रिप्रेजेंट्स द रिसेसिव जीन. तो ये चीज नहीं आए. प्योर ब्रीड वो वाला है जिसमें हमारे पास जेनेटिकली अवेलेबल प्योर फॉर्म में ये हमारे पास रिजल्टेंट है. ठीक है, तो अब ये प्योर ब्रीड को ढूंढना कैसे था? प्योर ब्रीड को ढूंढने के लिए क्रॉसेस करे गए, बार बार क्रॉस किए गए. इफ इन अ जनरेशन यू आर गेटिंग समहाउ यू आर गेटिंग द बार बार जनरेशन बनाने में 2 या 3 भी बनाओगे ना, तो पता चल जाता है कि उसमें स्मॉल वी था या नहीं था. वो कैसे पता चलता है? इन अ जनरेशन ऑफ 10 प्लांट्स, लेट्स से आपको 10 प्लांट्स पहली जनरेशन में मिले, देवर ऑल वॉयलेट. सेकेंड आपने उसी प्लांट की दोबारा आपने फिर से दोबारा ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन किया, तो यहाँ पे क्या हुआ? देवर नॉट हैविंग द, देवर अगेन इन द सेकेंड जनरेशन दे कुड हैव द वन ऑफ द वाइट फ्लावर्स. अगर एक भी वाइट फ्लावर आ गया उसके जनरेशन में, तो मतलब ये है कि इनिशियली कहीं ना कहीं पेरेंट्स में ये स्मॉल बी जो था वो प्रेजेंट था, जिस वजह से यहाँ पे नजर आया है ना. तो अगर वो नजर नहीं आए, वो जनरेशन 1, जनरेशन 2 या फाइनली जनरेशन 3 ज्यादा से ज्यादा ढूंढ सकते हैं. 2 जनरेशन के लिए अगर ये वाइट फ्लावर नहीं आता, तो इट इज सपोज दैट इट इज ऑल कैपिटल वी जो आपस में ही अगर क्रॉस करते जाएंगे तो हर बार रिजल्ट यही देंगे, कैपिटल वी. तो वॉयलेट्स को वॉयलेट से क्रॉस करके देखा, तो इट कुड नॉट गिव फॉर 2 जनरेशन, इट कुड नॉट गिव वाइट फ्लावर, सो दैट मीन्स इट वॉज अ प्योर ब्रीड. एंड रिसेसिव वाले का तो प्योर ब्रीड है ही बड़ा आसान है, क्योंकि वो तभी आएगा जब ये दोनों स्मॉल वीज इकट्ठी होंगी. व्हाइट कलर का फ्लावर बनना ही तब है जब ये दोनों स्मॉल वीज इकट्ठी होंगी. तो इसमें आपको सिलेक्ट करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, सिर्फ डोमिनेटिंग को देखने में दिक्कत आएगी, बिकॉज these are the two variations by which it can show violet flower. Okay, so this was the selection of the pure breed. Pure breed is genetically pure, it should have the same type of the genes in the pair. So now we have selected the two of the pure breeds, pure dominant and pure recessive. ठीक है, सो प्योर ब्रीड का मतलब क्या है? दैट इट शुड बी प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव. ठीक है, प्योर डोमिनेंट पूरा लिख लो, प्योर डोमिनेंट एंड प्योर रिसेसिव. क्लियर? द फर्स्ट स्टेप दैट इज ऑफ सिलेक्शन ऑफ द प्योर ब्रीड. Second after this, that which we have already discussed, that is of artificial hybridization. And for artificial hybridization, we know the 3 steps, that is the emasculation, first step, artificial hybridization. Now let's say in our
सर्च फॉर द प्योर ब्रीड, डोमिनेटिंग ब्रीड की सर्च में हमारे पास सारे वॉयलेट्स आए फर्स्ट में, सेकंड में सारे वॉयलेट्स आए, मींस अब 10 के 10 जो फ्लावर्स हैं वो कैपिटल वी से ही बनते आ रहे हैं। एंड व्हाट वी फाउंड द 10 प्लांट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन, second or the third generation, they are again capital V, all violets, no white chances are there. So ये सारे के सारे क्या है हमारे पास प्योर डोमिनेंट है, 10 फ्लावर्स हैं। और यहाँ पे व्हाइट फ्लावर सिर्फ एक जो हमने अलग से कहीं से निकाल के लाए, एंड दैट इज हैविंग द स्मॉल वी पेयर। अब हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या करना है, बिकॉज वी हैव मोर इन नंबर ऑफ द डोमिनेटिंग फ्लावर ऑलवेज, डोमिनेटिंग फीचर हमेशा ज्यादा रहेगा, तो हमने इसको बेस प्लांट लेना है। बेस मतलब इस प्लांट की इमैस्कुलेशन करी जाएगी, दोनों में से प्रेफरेबली इसकी इमैस्कुलेशन करी जाएगी, क्योंकि इसमें यूज करने के फायदा ये है कि हम 10 सेटअप्स लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये मेरे पास सिर्फ एक ही है, क्योंकि जनरेशन में ऑलरेडी ये कम ही खिलना है। तो अगर ये एक अवेलेबल है तो उसके पॉलन ग्रेन्स थाउजेंड्स में, वो हम यूज करेंगे। पॉलन ग्रेन्स बहुत सारे हैं, यहाँ पे हमारे पास सेटअप्स 10 लग जाएंगे, एक ही सेटअप लगाओगे तो वो ही खराब हो गया तो आपका एक्सपेरिमेंट जीरो, दोबारा फिर से नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। पर यहाँ 10 में से कोई एक तो रिजल्ट देगा, ठीक है। सो वी आर सिलेक्टिंग द बेस प्लांट एज दैट ऑफ वॉयलेट। सो व्हेन वी हैव टेकन द बेस प्लांट एज दैट ऑफ वॉयलेट, अगर हमने वॉयलेट का बेस प्लांट लिया तो उसमें से हमने वॉयलेट में से हमने इमैस्कुलेशन कर दिया, वॉयलेट वाले फ्लावर्स का हमने इमैस्कुलेशन करा। इमैस्कुलेशन मींस रिमूवल ऑफ द मेल reproductive organ, that is an anther, from where, from the flower which was violet in color, removal of the male reproductive organ from the flower which is violet in color, okay। Now the next, after emasculation, the second one, that is the second will be emasculation करके हमने क्या करा, साथ ही क्योंकि बाहर से कोई और पॉलन ग्रेन्स हमारे इस एक्सपेरिमेंट को खराब ना कर दें, हम चाहते हैं सिर्फ वॉयलेट वाले ही इसके ऊपर गिरें, ठीक है। कोई और पॉलन ग्रेन्स ना आ जाए, बीच में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट करें, पॉलन ग्रेन्स ऑफ दिस ओन स्पीशी वॉयलेट वाले ही आगे ना गिर जाए, हमारा रिजल्टेंट खराब हो जाएगा। तो ये क्या है, हमने क्या किया है, इसको बैग कर देना है, मतलब इसको एक पैकिंग कर देनी है, एक पैकेट के अंदर, यानी एक बैग के अंदर, ट्रांसपेरेंट बैग लेके, प्रोवाइडेड बैगिंग दिस शुड हैव द एरेशन होल्स इन इट। ये एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि हमें इसके अंदर छोटे छोटे से छेद करने पड़ेंगे, होल्स करने पड़ेंगे, विच आर नोन एज एरेशन होल्स, दैट इज टू मेक द फ्लावर फ्रेश, टू कीप इट फ्रेश फॉर द लॉन्ग टाइम, ताकि वो सांस लेता रहे, गैसेस एक्सचेंज चलता रहे, एंड इट इज फ्रेश फॉर द लॉन्ग टाइम, हवा जो है वो आती जाती है, ठीक है। पर वो इतने भी बड़े नहीं होने चाहिए ये जो होल्स हैं कि उनमें से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वही ट्रैवल कर जाए, ठीक है। तो ये इतने बड़े नहीं होने चाहिए, और रादर ये बेस की तरफ लगाए जाते हैं, ताकि जो पॉलन ग्रेन्स अगर हवा से उड़ेंगे भी तो ऊपर आके सेटल हो जाएंगे, बैक के ऊपर होंगे, उनमें अगर ऊपर ऊपर छेद करोगे तो वो नीचे भी जा सकते हैं, अंदर भी जा सकते हैं। तो ये बैक के बेस की तरफ किए जाते हैं एरेशन होल्स, वहां पे छेद करे जाएंगे और वो उड़ के इस तरह से नहीं अंदर से जाएंगे, ठीक है। सो दैट इज बैक। Also, one thing more is provided along with it, and that is called as tagging. Tagging means a tag has been fixed with this whole setup, emasculation जो किया उसी पे बैग लगा दिया, उसके साथ हमने एक टैग लगा दिया, और उस टैग पे हमने बेस प्लांट का नाम लिखा, इसकी emasculation हो चुकी है ये लिखा, इन्फॉर्मेशन ऑफ द डेट एंड एवरीथिंग देते हैं, emasculation करे कितनी देर हो गई है, पॉलिनेशन कर दी है या नहीं कर दी है, अगर कर दी है कौन से फ्लावर से की है, कब करी है, और कब तक रिजल्ट देखना है, बैगिंग हो चुकी है, रीबैगिंग हो चुकी है, ये सब इन्फॉर्मेशन उस टैग पे लिखी जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद एक प्रोसेस आता है जिसको हम लिस्ट नहीं करते हैं, लेकिन बट दैट इज अ प्रोसेस डाउन हियर, दैट इज आफ्टर टैगिंग, इट इज कॉल्ड एज रीबैगिंग। व्हेन एंड व्हाई इट इज डन, इसका क्वेश्चन बोर्ड्स में आता है, व्हेन एंड व्हाई रीबैगिंग इज डन। सो यहाँ पे हमने सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिमूव कर दिया हुआ है वॉयलेट फ्लावर से, बैक कर दिया है, बंद कर दिया है, टैगिंग हो चुका है, एरेशन होल्स आ गए हैं। अब जब हमने व्हाइट फ्लावर के पॉलन ग्रेन्स ब्रश पे लेके आने, पेंट ब्रश लो सिंपल, और उसके ऊपर उसके एंथर्स के साथ टैपिंग करवा के उसके पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट कर लो। When you are ready with the pollen grains on the brush, you just remove out the bag and you sprinkle out the pollen grains, and do not use the same bag जो हमने remove किया, now replace it with a new bag, ठीक है। उसके ऊपर हमने एक नवा बैग लगा देना है, that process is called as rebag। Why this bag has been removed and why it is done, आपको भी मैंने क्वेश्चन बोला था,
when and why rebagging is done. It is done after the third step of the artificial hybridization, and it is done when you are to when you have sprinkled the pollen grains of the required plant. ठीक है, रिक्वायर्ड प्लांट के pollen grains जब डाल दिए उसके बाद आपने न्यू फ्रेश बैग लगाना है. एंड व्हाई इट इज डन? बिकॉज द बैग विच वाज ऑलरेडी प्लेस्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट में, द बैग विच हैज बीन ऑलरेडी प्लेस्ड ओवर इट might contain some other pollen grains due to the passage of time, है ना, उसके ऊपर हो सकते थे. तो अगर हम इसको निकाल रहे हैं, बड़ी पर्टिकुलरली निकालना पड़ेगा, और अगर वही वापस डाल देते हैं हो सकता है वो स्प्रिंकल हो जाए पहले. अगर वही वाला बैग उठा के वापस लेके आते हैं हो सकता है वो स्प्रिंकल हो जाए उसके ऊपर. सो वो हमने नहीं होने देना. वेरी केयरफुली वी हैव टू रिमूव इट एंड रिप्लेस इट विद अ न्यू बैग, अगेन हैविंग द एरेशन ऑफ दिस. ओके, so this is the second step, that is of artificial hybridization. Clear? So we have provided here one step, that of first step, that of the selection of the pure breeds. Second step we have provided is a artificial hybridization. Coming to the last, third step of his experiments, that is experimental work he has to do. So the third step of the experimental work, that is after getting one generation, the next generations are not to be created in such a manner. मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेप के साथ ही नहीं हमने नेक्स्ट जनरेशन बनानी. नेक्स्ट जनरेशन बनेगी बाय सेल्फिंग. सेल्फिंग ऑफ F1 generation to get F2 generation and so on. मतलब अब सेल्फिंग आप अगर F2 की करेंगे तो वो आपको थर्ड देगी जनरेशन, थर्ड की करेंगे तो वो फोर्थ देगी. ठीक है, बट हिज एक्सपेरिमेंट्स दैट हैज बीन डन ओनली टिल द बिल्टअप ऑफ F2 जनरेशन. मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो सिर्फ F2 जनरेशन के बनने तक के बने हैं हमारे पास, F3 नहीं बनी है. बट ही हैज कंक्लूडेड एंड सो ऑन, एज यू विश यू कैन गो विद दिस, राइट. यू कैन proceed with the experiments as you wish, right? So this was his selection and this was his experimental work. After working on these steps, he has led to some conclusions, and those conclusions he has marked in the form of the laws of inheritance. Okay, whatsoever the conclusions he has formed after his experiments, whatsoever the conclusions he has made, he has given them in the form of 4 laws of inheritance. इनिशियली हमारे पास मेंडल से जो आए थे वो 4 लॉस थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे इसके ऊपर और वर्क होता गया, बहुत सारे लोग जेनेटिक्स फील्ड में आ गए, इन्वॉल्व हो गए, एक्सपेरिमेंट्स यही वाले कंटिन्यू करे. दे फाउंड आउट सम एक्सेप्शंस, क्योंकि इन्होंने सिर्फ पी के बेसिस पे हमें लॉस दिए थे, पर बाकी भी तो ऑर्गेनिज्म है. जब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को फाइंड आउट किया गया कि उनके ऊपर भी ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल हैं या नहीं है जो लॉस मेंडल ने दिए, तो बहुत सारी एक्सेप्शंस मिली हमें इन लॉज में, और उनकी वजह से बहुत सारे लॉज जो हैं वो डिलीट भी कर दिए गए. यानी आउट ऑफ 4, 2 लॉज वर डिलीटेड, दैट इज दे हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम दिस लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड ओनली 2 आर एक्सेप्शनली यूज्ड टिल नाउ. ठीक है, 2 ही रह गए हमारे पास जो अभी यूज होते हैं. बट इन योर एनसीईआरटीज बुक्स दे हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, तो हम लोगों ने भी करने हैं चारों के 4 लॉ विच आर गिवन बाय मेंडल. ठीक है, but before that we are to study what are the 7 contrasting characters of the pea plant that has been what are the 7 contrasting characters of the pea plant that has been provided studied by Mendel for his work. So what are the 7 contrasting characters? We have to make a chart for this. Any question till this? If you have any doubt, anyone, please raise your hand. Pea plant. So the 7 contrasting characters of the pea plant, we are to just make a table for the characters and their contrasting traits. Okay, so you can write it all in the form of the characters. This is in the form of a table, you can enlist it. These are the characters and their contrast, that is given in the form of the dominating feature. This is the dominating feature and a recessive feature. Okay, the dominating feature and a recessive feature. Clear? So what are the characteristics? सबसे पहला characteristic which is very simple and general one, that is the stem height. Talking about the stem height, dominating feature says that it is more in number as a tall characteristic and less in number as a dwarf characteristic, which makes it a recessive feature. Okay,
Then comes the two characters of the flower, that is the flower color and the flower position. फ्लावर के दो करेक्टर्स हैं. फ्लावर का कलर जो हमने अभी डिस्क्राइब किया, दैट इज वॉयलेट, as dominant, found in more of the organisms in a population, and white, which is found in less of the organisms, lesser number in a population. Then flower position. Position means where it is found. If this is the stem of the leaf, this pea plant, right? If this is a stem, then these are either found in the axials or in the terminal position. And these are the leaves, let's say, for a pea plant, these are the leaves, right? Clear? If they are found in the axil of each leaf like this, मतलब हर एक लीफ की एक्सिल में एक एक फ्लावर बेयर अप हो रहा है, right? Then it is the axial arrangement which is a dominating feature. And if it is found terminally, that is by the end of the stalk where it is found as a lone single एक मिलता है, that is not having anything in axils, right? Like this, it is not having anything in the axils. Then it is a terminal that is found at the tip position as terminal flower position, which is the recessive feature, right? Clear? Now the two further characteristics, that for pod color and pod shape. Pod color and pod shape. The pod color, that is pod is what? That is a जो मटर का पूरा वो इस तरह से फ्रूट होता है, ठीक है, जिसको आप खोल के उसके बीच में से दाने निकालते हो, तो दैट इज द पॉड कलर. Okay, the pod color is what? That is green as dominating and yellow as recessive. When you purchase out, when the mothers will purchase these peas for you for home, ठीक है, तो उसमें एक बारी देख लेना नजर मार के, you will see maximum of the pea pods they are green in color, right? And maximum of them will be also inflated. Inflated मतलब proper खिले हुए फूले हुए, ठीक है, ऐसे properly इस तरह से shaped. और बहुत कम होते हैं जो ऐसे बिल्कुल पिचके पड़े होते हैं, ठीक है, they are constricted. That is what we call them as flattened or constricted. So this is recessive if the pod shape is constricted. Okay. Then next are the two characteristics for the seed. That is the seed color and seed shape. अब जब भी आप मटर खोल के देखेंगे, एक तो मम्मा की हेल्प हो जाएगी, दूसरा मटर निकल जाएंगे तो साथ में मम्मी की हेल्प हो जाएगी, और मटर खोल खोल के देखेंगे उनके पॉड्स, देन यू विल सी दैट द सीड कलर को थोड़ा व्यू करना मुश्किल है. उसमें क्या है, येलो कलर के आपको नजर नहीं आएंगे, आपको ग्रीन नजर आएंगे. बट व्हेन यू रिमूव आउट द पील, ठीक है, अगर आप उस मटर के ऊपर की अगर आप पील रिमूव करते हो, देन दे आर येलो इन कलर. दैट पील गिव्स द येलोइश कलरेशन. ओके, सो दैट इज द पील की वजह से इसको कलर दिया है, दैट इज येलो कलर एज डोमिनेटिंग एंड ग्रीन एज रिसेसिव. एंड सो फॉर द सीड शेप अगर आप देखेंगे, दे आर मोर ऑफ द कॉमन, दे आर राउंडेड एंड वेरी लेस ऑफ देम आर, जो बिल्कुल ऐसे बंद से पड़े होते हैं, दे आर रिंकल्ड. ठीक है, वेरी लेस ऑफ देम आर रिंकल्ड, मोर ऑफ कॉमन दे विल बी राउंडेड. Clear? So these are the seven contrasting characters with the dominating and the recessive features. Now to represent their genes, that is also the gene, how to write the gene given by this Mendel. उन्होंने कैसे लिखा कि जीन कैसे देना है, उन्होंने कहा कि डोमिनेटिंग फीचर का फर्स्ट अल्फाबेट को पेयर में, क्योंकि ये भी उनका एक लॉ था, लॉ ऑफ पेयर फैक्टर, ठीक है. सो उन्होंने कहा कि पेयर में कैपिटल्स में लिखेंगे तो वो डोमिनेटिंग जीन पेयर बन जाएगा, और उसी अल्फाबेट को, डी को नहीं लिखना, उसी अल्फाबेट को अगर स्मॉल में लिख देंगे तो वो रिसेसिव जीन पेयर बन जाएगा. ठीक है, सिमिलरली हम यहाँ पे देखें तो दिस इज कैपिटल वी फॉर वॉयलेट, स्मॉल वी फॉर वाइट. सेम वे यू आर टू कवर ऑल द करेक्टर्स here, that is writing dominating, तो
first alphabet of dominating in capitals, and if writing the small, then first alphabet of the dominating feature only, but in small form, that is small fonts में आपने इसको लिखना like this. Okay, so this is the gene pair that which shows the characteristic which will be applicable, right? So this time is also over. If you have any query, any question, you can ask me, and we will continue further tomorrow.